Hello everyone, my name is Ayan Gormukar and I am from West Bengal. I have scored 705 out of 720 in my third attempt in NEET 2024. I have also scored 99.43 percentile in JEE Physics and achieved a 520 rank in WBJE without attempting any math question. So from the beginning of my life, I was a school topper in not only in studies, but also in many other activities like singing, drawing, and drama, and all these things, playing also. But मैं गांव से belong करता हूँ, so वहाँ पर कोई English medium school नहीं था, and my parents were not so much financially active or financially capable, so that they can't admit me to English medium school. And I am from the Bengal medium school, and I cleared my 10th and 12th from the state board or Bengal medium and with excellence. Okay, and at the time I thought कि नीट क्या ही होगा. Okay, सिंपल एक स्टेट बोर्ड जैसा ही होगा, एंड आई हैव क्लियर्ड माई स्टेट बोर्ड विद एक्सलेंस, सो आई कैन डू इट एक्चुअली. सो दैट वॉज माई थॉट एट द टाइम ऑफ पीरियड. बट जब मैं फर्स्ट टाइम नीट एग्ज़ाम देने गया एंड देकर आया, एंड आई फील कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, ठीक है, एंड आई स्कोर्ड 194 आउट ऑफ 720. यू कैन फील मी. ओके, तो मैं समझ गया था कि मैं अभी कुछ नहीं हूँ एंड मुझे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. सो सिर्फ बोर्ड्स पढ़ने से नीट नहीं क्लियर होता था. एक्चुअली मैं वहाँ पर जो बेंगल मीडियम स्कूल था, वहाँ पर एनवायरनमेंट ऐसा था कि कोई नीट के लिए कोई एनवायरनमेंट नहीं था उसमें. एंड मैं एक प्रॉपर वेस्ट बंगाल से गांव के हूँ. सो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि नीट के बारे में कुछ और को नॉट ओनली नीट बट ऑल्सो एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. वहाँ पर उतना ज़्यादा एनवायरनमेंट नहीं है इसका. जस्ट 10th एंड 12th का बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू है वहाँ पर. लोग बोलते हैं कि 10th पास कर लो, 12th पास कर लो, वो उसके वही सब है, ठीक. तो ऐसा क्या हुआ कि 11-12 में कोई इंसेट ही नहीं पढ़ा मैं. जस्ट ओनली फोकस ऑन द बोर्ड्स, एंड दैट इज़ माई बिग बिग फॉल्ट. सो जो हो गया हो गया. मैं टोटली ब्रेक हो गया था, क्योंकि स्कूल टॉपर जो ऐसा स्कोर किया, अब 194 वो कैसे अब खड़ा हो पाएगा, नहीं जानता था मैं. उस टाइम ब्लैंक हो गया था मेरा. एंड उस टाइम फैमिली ने सपोर्ट किया एंड मुझे आकाश कोलकाता में एडमिट किया. एंड बट एट द लेटर टाइम व्हेन द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड, and it was I think 8th of August when I admitted to the Akash Kolkata. And yeah, so I had only 7 to 8 months of time for my preparation for the first time. That is the main focus. Okay, that's the main point. And at the time, I am from the Bengal medium school. I never read the English books, so that was my biggest challenge for me, I think. So I started my preparation from Akash, and the beginning of the preparation was very good, and I scored sometimes 650 plus, sometimes 640 plus. That's a good, because I'm a studious student, although. So, but when the syllabus going on, I can't do the revision. I could not do the revision. I could not revise the topics, so that because of the less of time, because of the less time, I studied hard. मुश्किल था, बहुत मुश्किल था. जो बच्चा क्लास 1 से बंगाली पढ़ा है, उसके लिए प्रॉपर पूरा बुक्स इंग्लिश में पढ़ना, उसको टर्म्स को समझना मुश्किल था. बट आई रियली वर्क हार्ड, एंड मैं पढ़ता रहा. 3 रात पढ़ता रहा. रात 1-2 बजे पढ़ता रहा. सुबह 6 बजे उठता था एंड 7 बजे आकाश जाना पड़ता था. so that was a time when I did my best. Okay, I give my best. So मैंने बोला कि मेरे पास सिर्फ 7 महीने थे, and I have to cover all the syllabus and I have to revise it. But the time is the enemy for myself for the time. इतना जल्दी सब हो गया, एंड सिलेबस भी ठीक से ख़त्म नहीं हो पाया वहाँ पर. बहुत भगाया सिलेबस, एंड दे कुड नॉट कवर इट एक्चुअली. तो ठीक से रिवाइज भी नहीं हो पाया, एंड एट द लास्ट टाइम आई गेव ओनली 4 or 5 full test, something like that, and I got something of 570, 540, 550, 580. These type of scores are there. I think मेरा सिलेक्शन हो जाएगा,
आई थॉट कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, बट अच्छा नहीं हुआ. बट when I came back home after giving my NEET exam 2023, it was 540 and I was totally shocked and totally blank at that time. कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ अब. Totally heartbreak है. And I didn't know what to do right now. I cried and I never cried before that. फिर से आकाश ज्वाइन करूँ या क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं कोलकाता से वापस घर आ गया एंड घर आने के बाद मूड एकदम ख़राब था. सो सजेस्ट किया टीचर्स ने एंड फैमिली ने सजेस्ट किया थोड़ा घूम के आ जाओ. मैं थोड़ा इधर उधर घूम के आया एंड उसके बाद फिर से स्टार्ट किया, बट इस बार PW चेकिंग 2.0 एंड या that was amazing step. Yeah, you know that. I follow every teacher. I follow every words from them. And I really work very hard. I follow all of the teachers, but Rishabh sir was one of them who was a proper Krishna to me, okay? And he was a main guide for me, I think. His words are really amazing. His words really motivated me. And I am here because of him and because of all of them. ऋषभ सर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो एक आपको मोटिवेट करता है, वो आपको एक माइंडसेट क्रिएट करता है जिससे आप अपने गोल को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सको. एंड वो एक अलग ही लेवल पर होता है. एंड आप ना माइंड से बहुत स्टेबल हो सकते हो. मैं तो उस टाइम बहुत स्टेबल हो गया था ऋषभ सर के हर एक, नॉट ओनली द स्टडीज़ बट ऑल्सो इन द फिजिकल एस्पेक्ट्स एंड सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स. आई वॉज सो टफ इन माई माइंड एट द टाइम. एंड मेरा 3 रूल था कि मुझे वो वाइट कोट इस बोनस का ये पहनना है एंड वो सभी साइड टीचर्स से सभी फैकल्टी से मिलना है मुझे. एंड दूसरे बार वो रोना मुझे ना पड़े मेरे माँ के सामने. ये 3 रूल था मेरे. एंड जब भी डिमोटिवेट होता था मैं ये 3 रूल याद करता था एंड फिर से लग जाता था. एंड उससे भी अगर काम ना हुआ देन आई डिड सम पुशअप्स टू एनर्जाइज. ओके, मैं इस प्रिपरेशन टाइम में समझ गया हूँ कि हार्डवर्क का क्या वैल्यू है. एंड इफ़ यू डू द हार्ड वर्क यू कान नेवर लूज. ओके, कान नेवर लूज, यू नेवर लूज. लाइफ को सिंपल रखो, हार्ड वर्क करते चलो एंड यू विल टेक योर सक्सेस. एंड तुम अपना सक्सेस खुद पाओगे. ठीक है, अपने माइंड को डेवलप करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करो, न्यूट्रल रखो. सक्सेस मिला तो ज़्यादा खुश मत रहो, और सक्सेस नहीं मिला, फेलियर मिला तो ज़्यादा रो मत. ओके, खुद को न्यूट्रल कर लो. छोटे छोटे एग्ज़ाम से, छोटे छोटे खुशियों से इतना ज़्यादा हंगामा मत मचाओ, एकदम न्यूट्रल रखो. ठीक है, उससे माइंड स्टेबल रहता है. एंड आफ्टर ऑल दिस हार्ड वर्क्स यू नो आई एम हियर एट एम्स भुवनेश्वर. And after doing this hard work, and it was so easy for me, and I gave the test in only 2 hours or 2 or 30 minutes in my mock test, and the score was very very good, 670 plus, 660 plus. And I also gave my NEET exam in 2 hours and 30 minutes with OMR. So you can understand that what type of practice and what type of hard work I have done in that particular preparation time. So I think this is not a failure, this is actually a process of life. You should keep hard working and wait for time. Thank you everything. Thank you for everything. Bless you all. Bye. Yeah.